गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग दिल्ली बोल सकता हूं। और एक और बार आपके लिए स्वागत करते हुए भारत अन्वेषण में आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी फिर आपको भारत अन्वेषण में स्वागत कर रहा हूं। टुडे इज 15th ऑफ जनवरी एंड आज बहुत स्पेशल डे है बिकॉज टुडे इज संक्रांति डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का मुबारक और हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू बोलते हुए आपको स्वागत कर रहा हूं। और आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे बीच में और आपको पता है वो कौन है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द पोस्टर, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लिंक एज वेल। सो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रति अपना जो कार्यक्रम के पहले एक हमारा भगवान को याद करते हुए हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। और चलिए आज भी याद करेंगे भगवान को, फिर अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मालिक तेरे बंदे हम
भगवान को याद करके हमेशा हम जो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू ऑलमाइटी, राइट? चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। भारत अन्वेषण आपके लिए हर संडे को इसी टाइम में लेके आऊँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी। आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है। शी इज डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट in an NGO called Indian Trust for Rural Heritage and Development. In short, it is called as ITRHD. चलिए उनको स्वागत करेंगे। उनका नाम है मिसेस मधु खत्री। नमस्ते मधु, how are you? Can you unmute your mic? Still it is muted, sorry. Okay. Namaste, welcome to Bharat Anveshan. How are you today? Namaskar. Thank you so much for inviting me, and I'm great. And I'm very happy to be a part of this great show. Very nice, very nice. I know that it's very cold right now in Delhi area, and I heard that कोई मजाक कर रहा था कि फ्रिज का टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दिल्ली में 1.5 है, तो इसके ये बेटर है कि फ्रिज के अंदर बैठो। तो but anyway, that's interesting climate. But first of all, appreciate that you are on the show, taking out your valuable 1 hour of a very busy schedule होता है संडे के शाम को, because next day you are preparing for the next day, you know, work related जो भी काम होते हैं अपना घर का काम फिनिश करके, then you are preparing for the, you know, office for the next day, and it's a working day, Monday होता है. But thank you so much for coming on this. First of all, tell me about you so that our हमारे दर्शकों को पता चले कि आप कौन है, and you know why you chose this NGO. वो उसके बारे में बात करेंगे, but you know just background about you. So first of all, thank you so much for having me on the show. I am Madhu Khatri, as Rajiv ji has already introduced me. So I of course born in Faridabad, but brought up in Delhi, studied in Delhi, then again got married and went back to Faridabad, Haryana. So then I started my career with a Tata Group company, where I worked for about 23 years in the admin and HR department. And after a long stint with this company, which was then taken over by a Japanese shipping company. So after, you know, completing my 23 years of stint, I took a break, a conscious break, and the break was for about 1.5 years. But sitting at home was not for me. So, and also I have to say, my daughter, she was a great motivator, and she was absolutely, you know, against the idea of a very active and, you know, active mom that she had been with all her life, sitting at home and just, you know, making food and, you know, just passing her time. So she was a great motivator. नहीं, आपको जाना है, आपको फिर से काम शुरू करना है, आप घर में नहीं बैठ सकते. So that started me, you know, thinking that I need to really look around and see what it is that I would like to do now. तो एक शुरू से एक मन में था कि कुछ किसी तरीके से कुछ सोशल सर्विस, किसी की कुछ हेल्प करना. बहुत एक्टिवली एक MNC में जैसे जॉब किया था, बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत प्रेशर के साथ, तो वैसे नहीं, लेकिन किसी की हेल्प करने के लिए और एक खुशी मिलना, एक सेटिस्फैक्शन मिलना, वैसा काम कुछ. So then I started looking around, and as luck would have it, I was interviewed by ITRHD, which is Indian Trust for Rural Heritage and Development. I went to their site, saw what they did, their work, interested me.
and they had advertised for a position in their organization, and I went, like, they liked me, my profile, and they took me on. So now I've been working with them for a little over 3.5 years, and so far the journey has been very good, very challenging at times, because it was a different kind of a work culture, work atmosphere, and different kind of people that you had to deal with on a more humane level. So yeah, I Sure. would say, yeah, but it has been interesting, and I'm very happy to be associated with this organization. वेरी वेरी ग्लैड, वेरी नाइस टू नो दैट. दर्शकों को बताएं कि मधु जी, as she mentioned, she worked in a corporate world for more than 20 plus years, 23 to be more precise. And it is very, very challenging when you work in a corporate world, then you try to shift the gear and get into the NGO world. How do you feel about that? I mean, what kind of the feeling you have, that's such a busy world, corporate mein, either appointment, either the delegates are coming, meeting them, long hours, commuting, and, to be on time, to be communicating within the organization. So I worked in the corporate world before, and I know exactly how it works. And from that, now I don't say this is a very easy work, NGO. This is more challenging, I would say, because I also work, as a passion. I try to do some NGO activities. But what is your, like, how do you, feel that drastic change? So initially, the change was quite, you could feel it. Oh my God, because in an MNC culture, it's very time bound. There are targets. It's more disciplined, and so it's a different kind of setup. There are fixed policies and rules. So there is very little room to maneuver, and coming from that world into NGO, it's more humane. You have to, improvise as the situation demands, because you may be dealing, and as the name only of the trust says, that we work in rural areas of India. So rural areas, you can imagine, you know, the kind of regional sensibilities, the kind of local population that you would have, dealing with them, local issues. So, and then, you always need to have that, need to keep in your mind how they are going to react to a particular situation. So you can't just have fixed rules or policies, or be a stickler for discipline or timings, or you can't give them targets. So you have to be flexible Yeah. in working in such situations. And then because it is more humane, आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, सोशल इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, तो कोई भी सिचुएशन जब आएगी, अब तो आपको थोड़ा ह्यूमैनिटी और थोड़ा सिंपैथी वाला एंगल वो आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपने साथ. आप ये नहीं कह सकते कि आपने इतना छुट्टी ले लिया, अब कुछ हो गया आपके घर में सिचुएशन, तो नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड. So you would have to show that you are concerned, you are with them, and Yeah. what happens to them, what affects them affects the NGO as well. So that that link is always there between them Yeah. and the NGO. It doesn't break away. So that is very important, and that is very, very different. I mean, MNC is a different setup altogether. It's more business-like environment, but NGO is not like it's not a business-like environment. Correct. So I That's the get, main. yeah, I mean, we can feel that, the difference, because since I mentioned that I worked in the corporate, as well as I also know in NGO, you need to have a lot of patience, because as you rightly mentioned, you're dealing with the humans, and आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, like it keeps on going and going. So you cannot, again, as you rightly mentioned, you cannot give them targets कि भाई मेरे को आज ही चाहिए या आज करना है, because everything depends on human beings. चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हमारा गुफ्तगू जारी रहेगी मधु खत्री के साथ. तो लेकिन अभी आज मैं जो 2-3 गाने प्ले कर रहा हूँ, उनके
पसंदीदा गाने हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग. सो एंड देन विल कम बैक अगेन. जागने हंसी रात लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से. हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से. फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार. पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार. बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार. आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले लग जा गले. व्हाट ए सॉन्ग. लता मंगेशकर, मदन मोहन जी ने कंपोज किया. ब्यूटीफुली sung and beautifully composed song. A very good choice, Madhu ji, and it's a lovely song. And to Thank you for begin saying with, that. yes, sure. And तो दर्शकों को बताया कि मिसेस मधु खत्री lives in the border of Delhi and Haryana,
which is in Faridabad, and she is working for ITRHD, which is an NGO right now, and she works as a director of project management, and she travels to conduct different events of these fundraising events, बोल सकते हैं. एंड दिस एनजीओ के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि भाई वो क्या करते हैं और व्हाई इट इज़ हेरिटेज डेवलपमेंट. ये सब जानना हमको ज़रूरी है, बिकॉज दैट वे इट विल हेल्प यू पीपल इफ़ यू वांट टू हेल्प देम, इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर देम. इट इज़ ऑलवेज गुड टू डू वन गुड एक्ट अ डे बोलते हैं लोग. तो एक लाइफ में भी एक अच्छा एक्ट करना हमारा, बीइंग ह्यूमन बींग्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी. So with that intention, Bharat Anveshan actually comes up with every Sunday different programs to talk not about Taj Mahal, not about Qutub Minar, not about India Gate or Gateway of India, but to talk about these interior places or these organization जो लोग हैं जिनका एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो उनको थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म दे के उनको थोड़ा एक्सपोजर दे और पता चले कि भी इंडिया में ऐसे भी चीज़ें होती है. ओके, लेट्स कम बैक टू आवर गेस्ट हियर टुडे, मिसेस मधु खत्री. एंड जैसे कि आपको पता है, शी वर्क्स फॉर ITRHD. ITRHD के बारे में कुछ हमको बताइए, दर्शकों को बताइए. ओके, ITRHD फुल फॉर्म आपने बताया है ही, इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. ये ट्रस्ट was started by Mr. S.K. Mishra. He is an IAS officer, very, very active still. He's 90 years old and an inspiration to many people. Like me. And he was also, and he was also the former principal secretary to the Prime Minister of India, Mr. Chandrasekhar ji. Before that, he was the principal secretary to 3 chief ministers of Haryana. He was a member of UPSC. Festivals of India in various European and US and Canada. He was the force behind those festivals. Then he was the person who started NIFT. His accomplishments are, a lot. And I think this program would be, too short to mention all of them. He also has a book which he's written, and he's written about his journey. So, when he was in the Haryana, he was working as a principal secretary to Shri Bansi Lal. So during that time, he was involved in many tourism-related projects. And as you may all be aware, Haryana में बहुत सारे tourist resorts हैं, जो owned by the government. So basically, वो एक project जो था, was started by our chairman, Shri S.K. Mishra. So that became, like, kind of a motivation or kind of, एक दूसरों के लिए एक example बन गया दूसरी states के लिए. And a lot of states followed the example set by Haryana. And Haryana, of course, Shri S.K. Mishra was responsible for setting all these resorts. So, and then, looking at his journey, he was connected with all these organizations all through his life. The Rice, School of Sports in Sonipat, which is a really, really very well-known school, and which has produced many, IAS officers, doctors, engineers, and it was, you can look up this organization. It's he was the pioneer who started this organization. So उनका जो भी experience रहा, जो उनका काम रहा, उसमें जैसे कि UPSC में थे, फिर निफ्ट का काम किया, फिर इंडिया के फेस्टिवल्स किए बाहर बहुत सारे, फिर उसके बाद इंटू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नेशनल ट्रस्ट, उसके मेंबर रहे और फिर उसके बाद उसके चेयरमैन रहे. देन फाइनली जब वहां से रिटायर हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से, ही इज अ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन. एंड उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी उन्होंने जिंदगी में शायद अचीव किया, और वो इन्हीं सब कामों से जुड़े रहे.
तो उन्होंने ये संस्था 2011 में स्टार्ट की, इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। जब ये Okay. संस्था शुरू की उन्होंने, तब इस ट्रस्ट के पास बैंक में 1 रुपया भी नहीं था। Wow. तो बट इट हैज, अगर मैं अपने ट्रस्टीज का नाम बोलूं, तो उनमें हमारे पास हमारे 25-26 ट्रस्टीज हैं, जिनमें से कि श्याम बेनेगल, महाराजा गज सिंह, Oh, और wow. राजा मलविंदर सिंह, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो बहुत वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, जो बहुत अच्छे से बहुत सारे फील्ड्स में से अकम्प्लिश्ड लोग हैं हमारे पास, जो हमारे ट्रस्टीज हैं। Hmm. तो लोगों के सपोर्ट के साथ, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के बहुत उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, बिकॉज वो खुद ही गवर्नमेंट से जुड़े रहे। एक हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं श्री योगेंद्र नारायण जी, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, और वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और राज्यसभा के स्पीकर थे। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइंडेड पीपल, जो कि इंडिया की रूरल सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी। हमारी जो धरोहर है, जो इतने अच्छे से शायद हम लोग सारी धरोहर, जो भी हमारे हेरिटेज आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, या और हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये संस्था स्थापित की गई थी 11 2011 में. में बाय श्री S.K. मिश्रा, और उनके साथ उनके बहुत से अच्छे दोस्त, अच्छे कलीग्स, पुराने कलीग्स, उन लोगों ने ज्वाइन किया। सो दैट्स हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। Wow, wow, brilliant. Actually, I got into a different दुनिया में मैं चला गया था when you started talking about his credentials, because I can only imagine, I can imagine that how much he would have spent his days in starting, or I would say his hours, in a day, to get this organization to a level what it is today. And जी, when you mentioned all these names, okay, those are all lovely names, right? Like a very high level and everything. But to have this similar kind of thoughts is very important when you yeah, have this kind of an organization, when you want to run this kind of an organization. yes, Because आजकल तो बहुत सारे NGOs हैं. जी, Every now, street you will find one NGO, and people are running different types of NGOs for different reasons. Okay, and I wouldn't say that everybody is doing the right thing, but I wouldn't say that everybody is also doing a wrong thing. But you have to be very careful in choosing an NGO. And I was impressed when I went to the website of ITRST and talking about the heritage, right? In the Western countries or in the foreign countries, you see the government of those countries do preserve the heritage of those countries, yes, and they literally promote, the tourism or the heritage जो भी है होता है. But when I read this ITRST details, I could imagine that you definitely would like to preserve the heritage on your the interior side of the country. And I think I can see some of the activities when you say rural heritage, right? जी। So rural means definitely it's the interior. So are you very particular in choosing the states, or how it works? Is it like focused on North India side, or of the rural areas of North India side, or you're focusing on the Haryana thing, or then you're moving into the UP, or how it is working? So basically, we are not focused on any particular, state, so to say. हम लोगों ने झारखंड में काम किया है, हमने केरला में काम किया है, हमने Wow. या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में. तो there is no limit to where we would like to work. We are not restricting ourselves.
So anywhere we get a good project, and we would like to definitely go into that state. So ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इस स्टेट में काम करेंगे और साउथ में काम नहीं करेंगे. साउथ में हमने काम किया है, हमने हम्म. रिसर्च स्टडीज की है हम्म. केरला में काफी, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, ग्रेट. सो विद दैट सेड, नॉर्मली किस तरह का एक्टिविटीज होता है आपके जैसे ये काम में? देखिए, जब हमने शुरू किया 2011 में, तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, विच इज इन उत्तर प्रदेश. तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 विलेजेस हैं, निजामाबाद, हरिहरपुर और मुबारकपुर. नाउ निजामाबाद जो है वो अपनी ब्लैक पॉटरी के लिए इट्स फेमस. लेकिन अफसोस कि वहाँ के जो पॉटर्स थे उनको इसका they didn't have any exposure, and they were unable to financially make their ends meet, even though they were so talented. And now this craft has of course got the GI tagging as well. एक हमारा सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपसे जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी. वो है हमारे एब्सोल्युटली. पॉटर, उनका नाम है मिस्टर सोहित प्रजापति, और वो ये काम करते हैं. और जब हमारी संस्था ने ये काम शुरू किया तो हमारे चेयरमैन वहाँ विजिट कर रहे थे उस गांव को. तो वो वहाँ गए और इनसे मिले, सोहित जी से. तो इनसे पूछा कि आप ये काम जानते हैं तो ये क्यों नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, क्योंकि इस काम से अभी पूरा नहीं पड़ता है हमको. तो बॉम्बे में क्या करते हो? तो वहाँ भेलपुरी बेचता हूँ. अरे बाप तो रे. वो अपना क्राफ्ट छोड़ के, बिकॉज ही वाज अनेबल टू फाइनेंशियली ही वाज स्ट्रगलिंग, so he had moved to Mumbai, and many of his other people from the area had moved out because they were unable to sustain themselves. So करेक्ट. with the encouragement and the support of our chairman and our organization, he came back. A lot of technical support, design support, and of course from the local government, because उसमें एक particular तरह की मिट्टी लगती है, तो उसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट दिलवाना, अप्रूवल दिलवाना, वो सब हमारी संस्था ने उनको हर तरीके का एनकरेजमेंट और सपोर्ट दिया. एंड टुडे he is you can say he's got so many awards state level पे. he's a very well known face. in fact अपने यहाँ पे वो एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, और ये एरिया बहुत बहुत फेमस है अपनी पॉटरी के लिए. और उनको सरकार ने बहुत सारे यू कैन से कि बहुत सारे उनको बेनिफिट्स या यू कैन से कि इस तरीके के दिया है कि वो अपना काम कंटिन्यू कर सकें. एंड नाउ दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन क्राफ्ट, एंड सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस. सो दैट वाज वन विलेज. प्रजापति साहब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और संक्रांति के भी बहुत बहुत विशेष. आपका ये काम और भी बढ़ते रहे, और दर्शकों को बताएं. आपको उनके लिए कुछ हेल्प वगैरह करना है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिएगा, या ज़रूर डेफिनेटली ITRST में वेबसाइट में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ कंटिन्यू. सॉरी टू इंटरप्ट यू. या Okay, so the second village that I want to point out is मुबारकपुर. सब लोगों को बनारसी साड़ी के बारे में तो पता ही होगा. तो जो डेफिनेटली. बेसिकली बनारसी साड़ी है वो बनती है मुबारकपुर में, लेकिन बिकती है बनारस के नाम से. तो बहुत बनारस में भी है वीवर्स, लेकिन बहुत एक लार्ज कम्युनिटी मुबारकपुर में रहती है, which was also impoverished. So हमारी ट्रस्ट ने उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया. प्लेटफॉर्म कैसे दिया कि हम लोगों ने उनके लिए दिल्ली और लखनऊ में एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया उनके लिए एनुअल एग्जीबिशंस, जहाँ पे उनको आने जाने का खर्चा, रहने की जगह, एग्जीबिशन के लिए जगह एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड किया. उसको एडवर्टाइज किया, एंड देन वी एडवर्टाइज it also as a place where the buyers could come and buy directly from the weavers. तो कोई मिडलमैन नहीं. तो जो आपको मार्केट में मिलता है जो प्रोडक्ट XYZ अमाउंट का, वो आप बिल्कुल डायरेक्ट वीवर से आप खरीदिए, तो वीवर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा
और आपको भी बेस्ट प्राइजेस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने उनको काफी सपोर्ट किया ओवर द इयर्स। सो नाउ जो लोग शुरू में हमारी संस्था से जुड़े, आज हम अभी रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द विलेज ऑफ मुबारकपुर। तो आज उनका घर और उनके लूम्स देख के बहुत ही खुशी है। एक मैं बात ये और कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो हैंडलूम की साड़ी वीव करते हैं, ना कि उन लोगों को जो पावर लूम की साड़ियां करते हैं, क्योंकि पावर लूम हमारी धरोहर नहीं है, वो हमारा हेरिटेज या क्राफ्ट नहीं है उस तरीके का। हम लोग तो हमारी जो संस्था है उसी क्राफ्ट को करती है जो हमारी धरोहर है और जिसे हम लुप्त होने से बचाना चाहते हैं, ताकि लोग हैंडलूम को चला के रखें जी। सो तीसरा जो विलेज है जो इसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी संस्था ने अडॉप्ट किया वाज हरिहरपुर। तो हरिहरपुर बेसिकली बहुत बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए जाना जाता है। इस विलेज की खास बात यह है कि यहाँ पे हर घर में कोई ना कोई म्यूजिक से रिलेटेड है फैमिलीज ज्यादातर इस घर की, और दादा से पिता, पिता से बेटा, ये धरोहर पास ऑन होती है म्यूजिक सिखाने की, चाहे वो सारंगी हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो वोकल हो। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी आपके म्यूजिशियंस हैं बहुत ग्रेट, जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बच्चे जो हैं आजकल, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो अपनी क्लासिकल सिंगिंग से हट के ना उसकी तरफ बढ़े, अपने क्लासिकल म्यूजिक को मेंटेन करें। तो ये हम लोगों ने इस चीज के लिए हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ एक म्यूजिक एकेडमी बनवाया है। उसके अलावा इन बच्चों को हम लोग बाकायदा एक क्लासिकल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उसके लिए ट्रस्ट ने गुरुजी रखे हैं। और जब भी हमारे ये एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं आजमगढ़ के, तो हम यहाँ के बच्चों को बुला के उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं टू परफॉर्म, एंड ऑल्सो अगेन देयर ट्रैवल stay that is taken care of by the तो म्यूजिक के बारे में आपने बताया, तो डेफिनेटली अभी एक और गाना सुनेंगे, छोटा सा ब्रेक लेके फिर वापस आते हैं।
परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आँखों में समुंदर है आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है जो एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी हो कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है फ्रॉम द मूवी श्योर ब्यूटीफुली कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मुकेश एंड लता मंगेशकर के आवाज में अभी आपने सुना एंड डेफिनेटली इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टू और डेफिनेटली मधु जी का भी फेवरेट है तो शी हैज रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग टू प्ले एंड आई सी दैट सम पीपल हैव नॉट म्यूटेड द mics so I request them to mute the mic if you have joined via a Zoom call because that can definitely distract the sound and all so that's okay sometimes these kind of noises are entertaining too so तो चलिए अपना ये गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हुए we are talking about today one of the NGOs that Mrs. Madhu Khatri is working with. It's called ITRHD. So basically rural heritage के बारे में वो promotion करते हैं whether it is art related या whether it is clothing या tourism हो या जगह हो या artist हो या music हो या anything that is related to the rural heritage kind of thing. So Madhuji, tell me the latest and the greatest project that you have worked on, not you personally, but as a organization, जो you think that very inspiring to the people. So basically मैंने आपको आजमगढ़ के बारे में बताया ये हमारे तीनों प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली चलते हैं क्योंकि हरिहरपुर में एक हमारा स्कूल है प्राइमरी स्कूल चाचा नेहरू प्राइमरी स्कूल जिसे कि हम लोग बिल्कुल फ्री चलाते हैं एंड वहाँ पे बच्चों के लिए मिड डे मील यूनिफॉर्म नो फीस इज देयर ऑफ कोर्स बुक्स आर देयर तो उस तरीके का पूरा सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इस स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उसी गांव की डॉटर इन लॉज हैं जो एजुकेटेड है so we're trying to create circular economy in the village itself. So this is the same village where we have this music academy and we are trying to promote the education aspect as well by not charging anything from the
children. So this has been going, the school is running now for almost 9 years. So this is an ongoing project. In addition to that, we have a skill development program in Bhiwani, which we've done with a corporate sponsor, Hindustan Government Chemicals Limited. Under this program, we've trained more than 100, boys and girls in enhancing their, employment skills by providing them training on computer education, also on tailoring and stitching. So we've, we would say that we've upskilled more than 125 youth from the rural areas of Bhiwani. So that is Wow. one project, which we just, it's just completed in December. But I think we are going to continue for a couple of months more. Maybe a personality development program. We are coming up with that within that area. Also with the sponsorship of Hindustan Government Chemicals Limited, Bhiwani, we've done a craft restoration in the area of Barmer, Rajasthan, which is Wow. again, so, one of the things that I'd like to mention here is that it's a very, very conservative area. And we were able to get two master female musicians and get the parents to consent to their young daughters and girls from the area to come and take, we had a music workshop for those girls. So in the first instance it's very difficult to find female musicians, the ustad. तो फीमेल उस्ताद ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बिल्कुल बाद बच्चों के माँ बाप को कन्विंस करना कि आप अपनी बेटियों को भेजिए, ये कला जो है लुप्त ना हो जाए। तो वो एक 45 दिन की हमारी वर्कशॉप थी। उसके अलावा we've done various other embroidery and applique kind of workshops in this area under this project. And also in close to Bhiwani there is another area, Gujrani. तो आप लोगों की शायद नॉलेज में होगा कि पुराने गांव में एक सराय सी होती थी जहाँ पे एक छोटा सा तालाब रहता था, और जहाँ पे जो यात्री हैं वो रुक भी सकते थे, कुछ खा के अपने जानवरों को आराम करने के लिए या दाना पानी देने के लिए. So there was one such area close to Bhiwani which is Gujrani. तो वहां पे इस तरीके के हमने 2 वेल क्लीन करा के रेस्टोर किए. उनका जो एक बहुत बड़ा सा तालाब था तो उसको पूरा हमने इस तरीके से, उसमें बहुत सीवर का पानी जाके उस तालाब की हालत बहुत खराब थी. तो जो हमारी ट्रस्ट है, वी हैव हेरिटेज आर्किटेक्ट्स ऑन बोर्ड, हेरिटेज कंजर्वेशन, जो हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो एक हमने प्रोजेक्ट अभी खत्म किया है. और उसके अलावा अभी नेक्स्ट मंथ इनफैक्ट हम लोग पटियाला में एक हेरिटेज फेस्टिवल रहता है जिसमें कि म्यूजिशियंस जो है वो ITRHD की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू प्रोवाइड करना. इट्स अ वेरी वेरी रिनाउंड फेस्टिवल. और जो लास्ट टाइम 2020 में ये फेस्टिवल जब हुआ था तो उसमें मैं कुछ एक आर्टिस्ट आपको बताना चाहूंगी जो आए थे और जिसके लिए ITRHD ने पूरे एफर्ट करके इन आर्टिस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करके परफॉर्मेंस हुआ था. राधा राजा रेड्डी, देन जाकिर हुसैन. So these are few of the names that I'm just saying. So it's a big festival, runs over 5-6 days. तो वो एक festival, we are hoping that it happens next month as well. So is one thing which is an ongoing process. In addition to that, झारखंड गवर्नमेंट ने हमें बहुत 2 प्रोजेक्ट्स दिए, जिसमें से एक मालूती टेम्पल्स है जो कि झारखंड में ही है. मालूती है उस जगह का नाम. वहाँ पे 72 टेम्पल्स थे, उसका प्रोजेक्ट हमें दिया गया. तो उसमें से बहुत से जो टेम्पल्स हैं वो हमने रिस्टोर किए. और उसके अलावा अगर आपने बिरसा मुंडा जेल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, तो वो एक जेल थी, वो भी हमारी संस्था के कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स ने रिस्टोर करके वो हैंड ओवर किया बिफोर टाइम. So that was also a government project, and that was a very, very prestigious project for us. So just to name a few. Name few of them. Yeah. Name a few. So how many people work in your organization?
So it's a very, very small office. Most of the people that I mentioned, including our chairman, vice chairman, and our member secretary, they Okay. all work pro bono. So Okay. we have a very small set of, you can say office staff, office team. So just maybe 4 or 5 people who, Okay. do all the work. But but your nature of work, the magnitude of work is so huge. Like going to the villages, वहाँ पे viewers को support करना, उधर जाके साफ सफाई करना. I mean, that is humongous. I mean, how do you guys do it? Like, you have people come and help you, or how? So basically we have a local support. Okay. हम लोग local consultants को project specific कई बार hire करते हैं. जैसे हमने बाड़मेर में एक local consultant को hire किया, for the project specific task. Then we also have hearts. These are people who are responsible for their particular region. So पूरे इंडिया में हमारा एक ऐसे हार्ट रहेगा, हेरिटेज एम्बेसडर ऑफ रूरल हेरिटेज बेसिकली. तो हम लोग अपने रेफरेंस के थ्रू या अपनी जो एक्सपीरियंस के थ्रू, जो हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है या और ट्रस्टीज हैं, उनके एक वी हैव अ डेटाबेस ऑफ सच पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, who work in these areas, who are active and who are interested in supporting our cause. So we appoint them as hearts. तो almost हर स्टेट में हमारे hearts हैं, और इनफैक्ट कई एरियाज में हमारे रीजन स्पेसिफिक भी हार्ट्स है. स्टेट के अंदर एक से ज्यादा भी हार्ट है हमारे, जो कि लोकल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हम लोगों को एक अपडेट देते हैं और लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को. सो दैट्स हाउ वी डू. So since you said अलग अलग स्टेट्स में आपके हार्ट्स हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लान्स है आउटसाइड इंडिया आल्सो हार्ट्स रखने का? So basically, we have one project also in Rajnagar, which is close to Khajuraho. So वहाँ पे that project is called Royal Gardens of Rajnagar. So this project is actually funded by our Belgium chapter. So so we have a Belgium chapter as well. So उन लोगों ने basically उस area में कुछ 16 gardens थे, जो कि वहाँ की erstwhile छतरपुर रॉयल फैमिली के यहाँ जब भी एक मेल एयर होता था, तो वो एक गार्डन एस्टैब्लिश करते थे. और वो गार्डन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो बिल्कुल कमर्शियल बनते गए, क्योंकि वो सब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो दे वेंट इनटू प्राइवेट हैंड्स दीज गार्डन्स. तो वो धीरे धीरे या तो कमर्शियल में कन्वर्ट होते गए या बिल्कुल एकदम उनकी सिचुएशन खराब हो गई. तो देयर वाज दिस पर्सन फ्रॉम बेल्जियम, हिज नेम इज मिस्टर गेर्ट रॉबरेक्स. तो वो ऐसे ही एक बार इंडिया आए और पहुंचे राजनगर में. सो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा इसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में. एंड फाइनली उनकी जो संस्था है बेल्जियम में, उनसे ये सपोर्ट एक मिला. और एक हमने गार्डन भी अभी इसी साल 2022 में अप्रैल में हम लोगों ने वो एक उसका इनॉग्रेशन किया, उसको रेनोवेट करके पूरा. और उसको हमारा प्रोग्राम था उनका कि एक विजिटर सेंटर वहां बनाया जाएगा, और इस तरीके से लोगों को, और वहां पे बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज राजनगर एक बहुत ड्राई एरिया है, बिल्कुल इट्स अ ड्रॉट प्रोन रीजन. तो लोकल क्या सीड वैरायटीज हैं, क्या ग्रो कर सकते हो, क्या सस्टेन करेगा, एंड एट द सेम टाइम जो वहां की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो क्या मतलब किस तरीके का पानी है वहां पे, उसकी स्टडी करवाई उन्होंने. क्या जो सॉइल है उसका एक स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ पूरा कि क्या सस्टेन कर सकती है वहां पे, क्या क्रॉप्स उगाई जानी चाहिए. तो उस तरीके का वो एक हमने पटेरिया का बाग है उस एक्चुअली गार्डन का नाम, जो हमने, आप यू कैन लुक दैट अप आल्सो. Sure. Yeah. So that was inaugurated recently. So that is also, we have a ITRHD Belgium chapter as well. Wow. So that is great to know. तो दर्शकों को बताएं जो अगर यूएस में बैठे हैं और यूरोप में भी अगर कोई बैठे हैं, तो they can also reach out to ITRHD to do any kind of support, any kind of sponsorship करना है, या कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेके उस प्रोजेक्ट को और ग्रूम करना चाहते हैं,
So definitely reach out to ITRST for this. So Madhu ji, I think we are almost now coming to an end to this program. Almost 1 घंटा हो गया, कैसे हुआ पता भी नहीं चला. डेफिनेटली मिश्रा जी को बहुत बहुत मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ, और I have to congratulate him for his immense hard work to make this organization so good and to give back to the society. Definitely, sir, you are doing fantastic work, and hats off to you. At this age, you are carrying this as a young, it's an inspiration for people like us, and we will definitely try to walk on your path as well, as much as we could. And I think it was fantastic to hear about the achievement, but it was a very short period of 45-50 minutes talks. बट स्टिल उसमें बहुत सारे हमने ITRST के बारे में पता कर लिया है. बट राइट, एंड देन वी विल आल्सो एक्सप्लोर इट मोर ऑन द वेबसाइट, एंड देन एज वी कीप इंटरेक्टिंग. मधु जी, यू वांट टू टेल एनीथिंग टू द ऑडियंस और द पीपल हु आर वाचिंग? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारी साइट को ज्यादा से ज्यादा, अगर हम लोग वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे काम को देखें, समझें, और किस तरीके से इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ कोर्स एनजीओ को चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज सपोर्ट, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स. सो डेफिनेटली वी वुड वेलकम एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन प्रोवाइड फॉर अस. एंड अगर आपके एरिया में कोई ऐसा you know of any government scheme, or you have any structure that you think needs a kind of an intervention by a society, definitely do visit our website, which is itrsd.com, and there are contact details given there. Please do contact our team, and we'd love to take this the issue up. थैंक यू वेरी मच मधु जी फॉर योर टाइम एंड लेटिंग अस नो अबाउट ITRST. दर्शकों को एक और बार रिमाइंड कर रहा हूँ, ITRSD.com जाइए, वहाँ पे चेक करिए उनका एक्टिविटीज़, उनके काम और उनका वर्क क्या क्या चल रहा है. यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी हेल्पिंग वॉलंटियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लोग अवेल नहीं करते हैं. मेरा भारत अन्वेषण का एक ही उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को अप्रोच करना और उनको एक्सपोजर देना, और आपको भी एक्सपोजर मिलेगा, नहीं तो आपको ITRST के बारे में अभी तक पता नहीं होएगा. तो अभी तो एटलीस्ट अभी मेरे ज़रिए भी थोड़ा बहुत पता चलने लगेगा आपको डेफिनेटली. और ज़्यादा से ज़्यादा RK मेलोडी चैनल पे सब्सक्राइब करिए. सो आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू. नेक्स्ट वीक डेफिनेटली लॉग इन करिए, रिपब्लिक डे के बारे में, इंडिया के रिपब्लिक डे बारे में बात करेंगे. टिल देन ये लास्ट गाना सुनेंगे, मधु जी का फेवरेट गाना, और हमारा भी है, आंधी का गाना है. तो ये सुनते हुए आप सबको मैं इस बारी ये कार्यक्रम से ऑफ लेते हुए, अगली बार इसी टाइम में, इसी समय, संडे के दिन फिर से मुलाकात होगी. टिल देन नमस्कार. जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए और हैप्पी रहिए. थैंक यू. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी. जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. कहाँ से चले, कहाँ के लिए, ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला
कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मुझे तेरी मोहब्बत का